Welcome back students to Veda YouTube channel. As you all know कि we are performing a series of video series जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट में देख रहे हैं how to score full marks. तो अब तक we have done history, maths and English का and in this video we'll discuss how to score full marks in science. Now science में होते हैं दो parts, science 1 and science 2. Science 1 consists of physics and chemistry and science 2 में होता है biology and EVS. एंड आपके दोनों पेपर्स का जो पेपर पैटर्न है इट इज सेम एंड दिस वीडियो सीरीज की हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन साइंस विल बी इन टू पार्ट्स. इन दिस वीडियो विल सी दैट इज पार्ट 1 विल सी द पेपर पैटर्न ऑफ साइंस एंड नेक्स्ट वीडियो विल सी हाउ वी कैन राइट परफेक्ट आंसर्स टू स्कोर फुल मार्क्स. सो देखते हैं कैसा है. So we have first question number 1 and इसके अंदर we have two parts. This question number 1A and 1B. Among this question number 1A is only MCQs. MCQs क्या है? Multiple choice questions. So यहाँ पे will have a question and उसके चार following answers होंगे. So we have to pick any of the answers जो कि correct है. So total यहाँ पे we have 5 questions. Each question carries 1 mark and total marks that we can score in question number 1A that will be 5 marks. Now next one that is 1B. This question is only objectives. It is only objectives. So any questions that is of 1 marks other than MCQs जैसे कि match the following, true or false, name the following, full forms, correlate, odd one out, है ना, and additional things. So all those will come under 1A B. Again here we have total how many questions? We have here 5 questions and sub attempt करने हैं. Each question carries 1 mark and total marks that we can achieve here is 5 marks. We can see question number 1A, it is only objectives or we can say 1 mark question. Total marks that we can score here is 5 marks. Sorry, 10 marks. 5 plus 5 is 10 marks and our paper is of 40 marks. So you can see out of 40 में से 25%, अगर 40 का 25% देखिए 10. So 25% paper of science is only objectives, that is 1 mark questions, MCQs plus objectives questions. So it is very easy to score these questions. Now next, after question number 1 we have question number 2. Question number 2. So just like question number 1, here we have 2 sections, 2A and 2B. So 2A is fixed, that is give scientific reasons. Give scientific reasons, short में GSR. Again question number 2, यहाँ पे जितने क्वेश्चन होंगे इन सबका वेटेज will be per question 2 marks and give scientific reasons में here we have total we have 3 questions. So इसमें से में 2 अटेम्प्ट करने हैं. So among 3 questions we have to attempt any 2. So each question carries 2 marks. So total marks that can be scored in question number 2A, give scientific reason, it is 4 marks. Now यहाँ पे अगर I'll take an example of science 1 जहाँ पे physics and chemistry होते हैं. So what will be questions का distribution? So here we can have एक question physics का and 2 questions chemistry, or we can have 2 questions of chemistry or and 1 question of physics. ऐसा डिवाइड होके आ सकता है. Now 2B is answer the following. 2B is answer the following. यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे 2 marks questions होंगे other than give reasons. तो कैसे questions होंगे? यहाँ पे we have complete the table, write short notes, define some small numericals अगर इसके बात करूँ मैं, या label the diagrams bio के लिए. ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ आपको प्रिकॉशंस लिखने पड़ सकते हैं फॉर एग्जांपल, है ना. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी इन स्मॉल क्वेश्चंस विल बी इन क्वेश्चन नंबर 2B. अगेन यहाँ पे टोटल वी हैव टोटल क्वेश्चंस वी हैव यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, जिसमें से वी हैव टू ओनली अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस आएंगे, वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली कितना? 3 क्वेश्चंस. नाउ ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. टोटल हाउ मेनी मार्क्स वी कैन स्कोर हियर? वी कैन स्कोर हियर टोटल 6 मार्क्स. नाउ यहाँ पे कैसे क्वेश्चन हो गए हमें जस्ट देखा. सो इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ साइंस 1 टोटल 5 क्वेश्चंस है, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कुड बी ऑफ फिजिक्स एंड लास्ट 3 कुड बी ऑफ केमिस्ट्री. और रूल चेंज हो सकता है कि फर्स्ट 3 और 3 फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कुड बी ऑफ केमिस्ट्री एंड लास्ट कुड बी फिजिक्स. तो
2:3 या 3:2 का रेशियो यहाँ पे हो सकता है. एंड सो यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 2 वी कैन टोटल कितना स्कोर कर सकते हैं 4 + 6 दैट इज 10 मार्क्स. तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क्स. तो टोटल यहाँ पे कंप्लीट होता है कितना 20 मार्क्स, दैट इज 50% ऑफ योर paper. Now after question number 1 and 2 we have next one, that is question number 3. Now question number 3 is very special. क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एक साथ आते हैं. So question number 3 में कोई सब कैटेगरीज या सब क्वेश्चंस नहीं है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे एक ही सिंगल क्वेश्चन है एंड ये है आंसर द फॉलोइंग. आंसर द फॉलोइंग. टोटल हियर वी हैव 8 क्वेश्चंस. यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं 8 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच वी हैव टू ओनली अटेम्प्ट एनी 5. टोटल वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. यहाँ पे ज्यादा नहीं, टोटल आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5. नाउ लेट अस सी. तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे क्या होगा, ईच क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 3, ईच क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 3 कैरीज 3 मार्क्स. So 5 questions attempt करने हैं, each question carries 3 marks. Total कितने marks we can score here? We can score here यहाँ पे of course you know 5 into 3 15 marks, जो कि सिंगल क्वेश्चन साइंस के पेपर में अगर आप देखोगे, साइंस के पेपर में देखोगे तो सिंगल क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज में कौन आएगा, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे क्या क्वेश्चन है टोटल कितना भी है, एज अ सेड यहाँ पे टोटल है 8 क्वेश्चन. सो स्टार्टिंग में कुड बी हैव यू नो 4 का डिवीजन हो सकता है, यू नो 4 फिजिक्स एंड 4 केमिस्ट्री. कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, पर आइडियली दिस शुड बी द क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम साइंस 1 के देखेंगे. नाउ यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल्स, कंप्लीट द पैरा बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, राइट शॉर्ट नोट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, सब यहाँ पे आएंगे. एंड रिमेंबर वन थिंग, जितने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस है इन क्वेश्चन नंबर 3 में. क्लियर है? नाउ इट इज वेरी इजी टू स्कोर. अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे इसको स्कोर करना है फुल मार्क्स इन क्वेश्चंस में, विल सी इन पार्ट 2, दैट इज राइटिंग आंसर्स. ओके, नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. एज आई टोल्ड यू, साइंस में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, 1 2 3. द लास्ट वन इज अगेन आंसर द फॉलोइंग. आंसर द following. यहाँ पे we have 2 options. So in question number 4 we have 2 questions, but we have to attempt only one. Attempt only one. So each question carries 5 marks, and we have to attempt only one. So यहाँ पे total we can score 5 marks. So you can see 20 यहाँ पे हो गया, 15 यहाँ पे and यहाँ पे 5. So total we have यहाँ पे कितने हैं 40 marks. Now let us discuss about question number 4. It's very special. Now क्या हो सकता है, आइडियली अगर मैं अगेन यहाँ पे बात करूँ, 2 क्वेश्चंस है. तो अगर साइंस 1 के हिसाब से देखेंगे तो एक हो सकता है फिजिक्स एंड सेकंड हो सकता है केमिस्ट्री. Now what type of questions could be asked in question number 4? See, there are 2 varieties. 2 तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं. The first one being a single statement question. क्या होगा, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंगे तो explain the functioning of AC motor with neat and clean diagram. या working of AC motor with neat and clean diagram. तो diagram है, functioning है, structure, सब कुछ बताना है. Total 5 marks का. And second type of questions we can have is, एक question number 1 के अंदर सब questions होंगे. जैसे for example we have ना lenses से question दिखता है कि define power of a lens. Define power of a lens. फिर उसमें फॉलोइंग न्यूमेरिकल दे दिया छोटा सा, ठीक है. एंड उसके बाद एक और कोई फॉलोइंग दे दिया. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जैसे केमिस्ट्री वगैरह में आता है, विल गिव यू अ टेबल, पीरियोडिक टेबल, उसमें जो एनालॉजिस्ट क्वेश्चंस पूछेंगे. सो अगर एट अ सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 4, राइट. सो यहाँ पे आइदर एक क्वेश्चन हो सकता है केमिस्ट्री और एक क्वेश्चन हो सकता है फिजिक्स. सो वो रिकैप करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव 2 सेक्शंस A and B. Each section carries 5 marks. Objectives होंगे यहाँ पे only 1 mark question. Question 2 में we have 2 mark questions. First part is A, that is give scientific reasons. We have to attempt only 2 questions. Each question carries 2 marks, total 4 marks. B में we have answer the following question. Other miscellaneous question यहाँ पे total होगा 6 marks. So question 1 and 2 will give us 20 marks. Question number 3 is very similar to question number 2B, पर यहाँ पे उसके थोड़े bigger versions होंगे. This will give us 15 marks. And last we have question number 4 that will give us 5 marks. यहाँ पे एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. एंड दिस इज द पेपर पैटर्न ऑफ साइंस, एंड दिस पेपर पैटर्न इज सेम फॉर साइंस 1 एंड साइंस 2. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पेपर, प्लीज
सो नो राइट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। एंड जाने से छोटा सा क्वेश्चन, यू नो अभी पेपर्स कैसे होता है साइंस के, वी हैव साइंस 1 का सेपरेट पेपर एंड साइंस 2 का सेपरेट पेपर, बट कुछ टाइम पहले ये दोनों पेपर्स, यू नो साइंस 1 एंड साइंस 2 पेपर एक साथ कंबाइन होते थे। सबको बताना है वो कब होता था, कौन सी ईयर तक होता था। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।